एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्ते, मैं हूं दीपिका दे और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ एपेक्स न्यूज इंडिया। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब खबरें आगे। अगले साल तक पूर्वोत्तर के अधिकतर हिस्सों से AFSPA हटाया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दिशा में लक्ष्य तय किया है। अगले साल पूर्वोत्तर के अधिकांश हिस्सों से हट सकता है अफस्पा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कथित तौर पर अगले वर्ष तक पूर्वोत्तर के लगभग पूरे क्षेत्र से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफस्पा हटाने का लक्ष्य तय किया है। वर्तमान में 80% से अधिक क्षेत्र पहले ही इस कानून के दायरे से बाहर आ चुका है और केवल 1 या 2 राज्यों में इसके प्रावधान लागू रहने की संभावना है। अब सपा की परिधि छोटी होना वो अपने आप में शांति का परिचय है और मुझे पूरा विश्वास है एकाध राज्य छोड़कर 2 राज्य छोड़कर हम अगले साल पूरे नॉर्थ ईस्ट से अपसपा को समाप्त कर देंगे और आज भी 80% से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र अपसपा से मुक्त हो गया है। त्रिपुरा में पूर्व उग्रवादियों ने पुनर्वास और रोजगार की मांग को लेकर 72 घंटे का सड़क और रेल ब्लॉकेड शुरू कर दिया है। त्रिपुरा में पूर्व उग्रवादियों ने पुनर्वास और स्थायी आजीविका की मांग को लेकर 72 घंटे का सड़क और रेल अवरोध शुरू किया है। इस प्रदर्शन के कारण राज्य के कई हिस्सों में यातायात सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। আমাদের 3টা জায়গা ব্লক করছে, ন্যাশনাল হাইওয়ে, ট্রেন এন্ড আমরা এখন গভর্নমেন্ট সাথে যে একত করে আসতেছে যে প্রায় 2 বছর কাছাকাছি হয়ে গেছে, এখন তো ফুলফিল হয় না। এখন তো বলতে গেলে আমাদের যে কেদার এখন তো অ্যাকসেপ্ট হয় না। সামথিং আমাদের তো বলতে গেলে এখন 1000 কেদার আছে, 1200 প্রায় 1200 কাছাকাছি। এখন 4 গ্রুপের ভিতরে মাত্র 91 কেদার অ্যাকসেপ্ট হয়েছে, আর বাদ বাকি তো ওরা কোনো খোঁজখবর রাখে না। আর আমরা যে অবস্থা এখন বলার কি বলবো, কোনো এখন পর্যন্ত কোনো ফিল্ড কোনো ঘর বাড়িও নাই, কিছু নাই, আমাদেরকে কিছু দেয় না। এখন হচ্ছে 24 সেপ্টেম্বর 20 সেপ্টেম্বর আর 2024 আই থিঙ্ক। আমরা বহুত কষ্টতে আছে, এই দাবি না মানা পর্যন্ত আমরা এখান থেকে তুলবো না। 양이 파이팅! मेघालय सरकार ने वार्ड जयंती लाइसेंसिंग मुद्दे पर सभी पक्षों से कानून का पालन करने की अपील की है। मेघालय सरकार ने जयंतिया हिल्स के कोयला मालिकों और खनिकों को वैकल्पिक खनन पद्धतियों के प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
कोयला संगठनों ने खनन प्रतिबंध के बाद आजीविका पर पड़े असर का हवाला देते हुए खनन गतिविधियां फिर से शुरू कराने की मांग की है। And very clear. So the scientific mining, they are saying that is not feasible. You see, that's why they said the present scientific mining is not feasible for these reasons. That's why we told them, we require, okay, then submit your alternative. What is your suggestion? And we're waiting for that. The government also will be taking up this matter. No, obviously, no, everything obviously. You see, after they submit to DMR, CM will call a joint meeting and will submit and pursue with the government of India. If everything is as per law. Will they be also moving the NGT and this Supreme Court? Well, that we'll see. We will see that. First, we have to discuss accordingly with in line with the government of India first. This is the problem faced by our people. It seems the present scientific mining policy is not matched with the location, especially in Giant Hill region. So we are waiting for an alternative suggestion from them. As soon as they submit, Chief Minister will call meeting. We'll have a good discussion between the government and the coal trader association from different part of the state. But so the main contention is about 100 hectares. Point number one is this: the area is too big. लगातार बारिश के चलते शिलोंग एयरपोर्ट एक्सपेंशन का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। उप मुख्यमंत्री स्न्याव भालांगधर ने बताया कि लगातार मानसूनी बारिश के कारण शिलांग हवाई अड्डे के विस्तार का कार्य अभी शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक मंजूरियां मिल चुकी हैं और परियोजना एजेंसी संसाधन जुटा रही है। इस परियोजना को 15 महीनों में पूरा किए जाने का लक्ष्य है। That is as of today, so let us see. Let us see. But what about New Shillong Township? New Shillong Township is the work is progress very good. It's very good in the positive direction. All the projects, some projects from the urban department, from project from tourism department, from project from the other, all the projects are progressing very good in and around New Shillong Township. मणिपुर बीजेपी अध्यक्ष शारदा देवी राज्यसभा की सीट पर बिना प्रतियोगिता के निर्वाचित हो गई है। मणिपुर भाजपा अध्यक्ष अधिकारी म्यूम शारदा देवी राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट पर निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने कहा कि वह मणिपुर के लोगों के कल्याण और विकास के लिए कार्य करेंगी। I am the blessing, I am the advice. Congratulations, madam. Election as the Rajya Sabha MP. So, on what probability? मुझे राज्यसभा मेंबर आज डिक्लेयर होने के बाद मैं जो भी काम मणिपुर के इंटरेस्ट में जो मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है और मैं भी एक मेंबर होने के नाते से मणिपुर के वेलफेयर के लिए मैं उन लोगों के साथ हाथ मिला के जनता के भलाई के लिए काम करेंगे। इम्फाल में 6 नागा पीड़ितों के शवों की पहचान की प्रक्रिया पूरी हुई। परिवारों ने न्याय की मांग की है। इम्फाल में 6 नागा पीड़ितों के परिजनों ने शवों की पहचान प्रक्रिया में भाग लिया। परिजनों ने शवों की स्थिति को अत्यंत दर्दनाक बताते हुए न्याय की मांग की है। सामुदायिक नेताओं ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। माना लिल्लिबा मागी फुरी खुंग्राव मसाद ड्रेस हपखिबसे असिदिगे अखोय आइडेंटिफाई तौबने मरमदि मसादिगे अखोय मसा येंगागा अखोय आइडेंटिफाई तौब ngamde मरमदि पृथ्वीदा चन्नदबा पृथ्वीदि जिन अमतसु तौरमदबा तौखिदबा थरोसे
मत का खरबना मसाक तगी अखोय करीसो अखोय अदिन खंगमदे मसाक खंगमदे अदुबु माहकना लिलिबा सेलिबा खुंग्रो फिरोंदगी अखोय से आइडेंटिफाई की अखोयगी नागासिमी तरुक से। अब समय हो चुका है यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का। ब्रेक के बाद मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। Welcome to Green Haven, Shillong, where luxury meets the serenity of nature. Nestled in the misty hills of Shillong, Green Haven offers Step into elegant rooms and thoughtfully designed suites crafted for comfort, relaxation, and unforgettable moments. Whether it's a romantic getaway, a family vacation, or a refreshing business stay, every experience here feels warm, personal, and truly special. Wake up to the beauty of Meghalaya, savor locally inspired flavors, and unwind in a calm atmosphere that blends modern luxury with eco-friendly living. आप सभी का फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल के अलीपुर में लगी भीषण आग में लगभग 4000 ईवीएम और कई महत्वपूर्ण फाइल्स जलकर नष्ट हो गई है। पश्चिम बंगाल के अलीपुर स्थित एक सरकारी परिसर में लगी भीषण आग में करीब 4000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ईवीएम नष्ट हो गईं। कई महत्वपूर्ण सरकारी फाइलें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। अधिकारियों ने संभावित साजिश के पहलू की जांच शुरू कर दी है। भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव की स्थिति देखने को मिली, जहां दोनों तरफ के लोगों के बीच पत्थरबाजी की खबर सामने आई है। भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव की स्थिति देखने को मिली, जहां कथित तौर पर बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर किसानों की फसलें लूटने की घटनाएं सामने आईं। इसके बाद दोनों देशों के सीमावर्ती नागरिकों के बीच पत्थरबाजी की भी खबरें मिली हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने फाल्ता के कथित अपराधी जहांगीर खान को गिरफ्तार कर सुरक्षा अभियान चलाया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने फाल्टा क्षेत्र के कथित अपराधी जहांगीर खान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पेश करने के तरीके को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे दावों पर अधिकारियों ने कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। हेलो एक्सक्लूसिव मारो वो ऐसे जान क्या एक और थोड़ा पार्टी सी ओमान के तट के पास व्यापारिक जहाजों पर हमलों को लेकर भारत ने अमेरिका के राजनयिक जेसन मिक्स को तलब कर अपना विरोध दर्ज कराया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों के विरोध में अमेरिका के चार्ज d'affaires जेसन मीक्स को तलब किया है। एक घटना में लापता बताए गए 3 भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हुई है। मंत्रालय ने बताया कि इस मुद्दे पर अमेरिकी मिशन को दूसरी बार तलब किया गया है। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी सिग्नेचर फॉर्जरी मामले में कोलकाता सीआईडी के सामने पेश हुए।
तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले में कोलकाता स्थित सीआईडी कार्यालय में पेश हुए। उनकी यह पेशी कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद हुई। नागा समुदाय ने न्याय की मांग उठाई। नागा समुदाय ने पेस्टर कैनपिबो और अन्य 5 नागा व्यक्तियों के मामले में न्याय और जवाबदेही की मांग की है। पादरी कैनपिबो और 5 अन्य नागा व्यक्तियों के शवों की बरामदगी और पहचान के बाद नागा समुदाय में शोक और आक्रोश का माहौल है। समुदाय के प्रतिनिधियों ने न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की है। आप सभी का फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों के साथ। मेघालय के साउथ वेस्ट गारो हिल्स में भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बीएसएफ द्वारा हिरासत में लिए गए एक कथित बांग्लादेशी नागरिक को सीमा पार वापस भेजे जाने के बाद सूत्रों के अनुसार बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, बीजीबी और स्थानीय लोगों ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इससे वो व्यक्ति सीमा की बार के पास फंसा हुआ बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं, जबकि बीएसएफ और बीजीबी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर दोनों देशों के स्थानीय नागरिकों के बीच झड़प की खबर सामने आई है। दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी की गई, जिससे सीमा क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। पंद्रह और 16 जून को शिलांग के लारिती परफॉर्मिंग सेंटर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर समिट आयोजित होगी। इसमें निवेश, पर्यटन, कनेक्टिविटी और पीपीपी परियोजनाओं पर चर्चा की जाएगी। Maybe interventions or investments here and all across the states, and that's why the senior officers are also expected to participate from various departments across the northeastern region, and will be a very good platform for us to interact along with the ministries. Like we are getting our Honorable Secretary of Tourism coming here, Honorable Secretary of Civil Aviation coming here, Honorable Secretary of Ministry of Donor coming here. So this gives the kind of seriousness which is required, so that the kind of comfort which any investment requires, that we are able to spell out in these 2 days. पर्यटन मंत्री टिमोथी डी शिरा ने बताया कि बेहतर सड़क संपर्क और नई पर्यटन परियोजनाओं के कारण पिछले 8 वर्षों में राज्य में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सोहरा सर्किट और रोपवे परियोजना प्रमुख आकर्षण बनेंगी। In Sohra also, we will be constructing this what is called this at Sachopen, this cultural center, and development of the Shala River bank, and development of this seven sisters Cape, Mosmai Cape.
So after development, all this. खबरों में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। धन्यवाद। Apex News India Northeast।